Assalamu alaikum everyone. Today I am starting a detailed and informative video series on Microsoft Excel. Using resources from W3 schools, I humbly request you to watch, like, share and comment to support and separate this learning effort. Let's begin. First open your browser and go to www.w3schools.com. Then open Microsoft Excel on your computer. Now you need to open Microsoft Excel as well, this one. On the W3 school website, you will find a wide range of tutorials. Here you can see there are different types of courses: HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java. Okay, now you need to open Microsoft Excel. The content will guide you step by step through the basics of advanced features of Microsoft Excel. Okay, now click on the Excel introduction. The first sheet is Excel tutorials, right? So Excel is the world's most used separate sheet program, which is the largest and widely used program. Excel is a powerful tool to use for mathematical functions, right? If you need to create a table or other mathematical purposes, then you need to be expert in Microsoft Excel, right? Okay, then next is here, why study Excel? There are three main reasons. The first is data analytics purpose, project management purpose, and finance and accounting purpose. Okay, now you need to click on the next and you will see the next page, Excel introduction. What is Excel? Excel is pronounced EKS or Excel. It is a separate sheet program developed by Microsoft. Okay, it's the product of Microsoft. Excel organizes data in columns and rows and allows you to do. It means that an Excel sheet is the combination of rows and columns. It runs on Windows. Okay, you can run it on Windows operating system, Mac operating system, Android और other I operating system. किसी भी operating system के अंदर हम उसको run कर सकते हैं. Then Excel is typically used for analysis purpose, data entry purpose, data management purpose, accounting purpose, budgeting purpose, data analysis purpose, visual and graph purpose, programming purpose, financial modeling purpose, and much more. Why use Excel? It is the most popular separate sheet program in the world. It is most usable and a popular program in the world. It is easy to learn and get to start it. The skill ceiling is high, which means that you can do more advanced things as you become better. It has high community support. It is continuously supported by Microsoft. Templates and frameworks can be reused by yourself and others, right? Now next, Excel gets started. Okay, Excel gets an Office 365. It means that the Excel, Microsoft Excel, is the product of Office 365. The easiest way to get started with Excel, it is use Office 365. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पे आपको लॉगिन करना होगा और देन वहाँ से आप ऑफिस 365 को लॉगिन करें तो ऑटोमेटिकली आपको ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे. ओके, द लिंक इज़ अवेलेबल देयर. अगर आपने ऑफिस को विजिट करना है देन द लिंक इज़ देयर www.office.com. फ्रॉम हियर यू कैन डाउनलोड ऑल द सॉफ्टवेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट or Office 365. So here you can see different programs are there. Next, Excel overview. Excel overview. This chapter is about giving you to an overview of an Excel. Excel structure is made of two pieces, the ribbon and the sheet. अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक Excel. This is the Excel sheet. तो यहाँ पे एक चीज़ रिबन है और एक शीट है. So where is the ribbon and where is the sheet? मैं आपको Excel ओपन करके दिखा देता हूँ. So ribbon ये एरिया हो गया, जैसे कि home is there, insert, draw, page layout, formulas, data, review, view. अगर इनमें से आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो इसके तमाम फीचर्स आपको शो हो जाएंगे. ड्रॉ पे ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें, ऑल द फीचर्स आर अवेलेबल हियर. सो ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, दिस एरिया इज कॉल्ड द रिबन. और बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया, ये जो एरिया है जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, ये चीज़. सो दिस इज़ द शीट. तो आपको दो चीज़ों का पता हो गया कि ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज़ कॉल्ड शीट. और ऊपर जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी टेप्स हैं, होम टेप्स, इंसर्ट टेप से लेके व्यू तक, इन सब के फीचर्स को मिला के इस एरिया को बोला जाता है, दैट इज़ द रिबन, राइट. ओके, इसके बाद नेक्स्ट
एक्सेल के कुछ चीज़ों के नाम है, जैसे कि ऐप लॉन्चर है, टैब्स है, ग्रुप्स है, कमेंट्स है, राइट। सो हम एक्सेल को ओपन करके देखते हैं। सो दिस इज़ द ऐप लॉन्चर। अगर आप स्टार्टिंग पे देखेंगे तो दिस एरिया इज कॉल्ड ऐप लॉन्चर, राइट। सो द टाइटल बार इज देयर, दिस एरिया इज कॉल्ड द टाइटल बार। सबसे ऊपर जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका टाइटल बार है। देन दिस इज़ द रिबन पोर्शन, ये रिबन पोर्शन है, और दिस इज़ द शीट। और इस शीट के अंदर भी आप देख सकते हो सेल्स बने हुए हैं। दिस सेल इज कॉल्ड एक्टिव। बाय डिफॉल्ट जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो एक सेल खुद से सेलेक्ट होता है, सो दैट सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल, रेस्ट ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड द पैसिव सेल्स। ओके, देन टेप्स। व्हाट इज टेप्स? ये टेप इस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेल में अगर आप जाएंगे एक्सेल शीट के अंदर, जैसे कि मैं होम पे क्लिक करूँ, सो होम इज़ अ टेप, इंसर्ट इज़ अ टेप, ड्रॉ इज़ अ टेप, टेप इनके नाम है। ओके, नेक्स्ट comments. These all are the parts of the excel. So right, for example this one you can see here, अगर मैं यहाँ पर excel पे कोई चीज़ टाइप करना चाहूँ, excel पे अगर मैं कोई चीज़ टाइप करना चाहूँ, for example this is the active cell. So here I am typing hello world, hello world, right. Okay, now you can see. Okay, अगर मैं यहाँ से इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द रो देन यू कैन क्लिक हियर और आप इसको ड्रैग करेंगे ऐसे। अगर आप कॉलम को रिसाइज करना चाह रहे हो तो आप कॉलम के सबसे ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको माउस का लेफ्ट की आप होल्ड करके रखेंगे और इसको आप ऐसे ड्रैग करेंगे। इस तरीके से आप इसकी रो या इसकी कॉलम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो हियर द अल्फ़ाबेट्स आर हियर A to Z. सो दिस अल्फ़ाबेट शोज द कॉलम्स एंड नंबर्स शोज द रोज। एक्सेल में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। सिमिलरली दैट वन इज column 1, column 2, column 3 up to so on, right? Okay, next one is एक्सेल सिंटैक्स। एक्सेल सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। फार्मूला इन एक्सेल इज यूज्ड टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। फार्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल टू साइन टाइप इन द एक्सेल। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करना है कि एक्सेल में आप जो भी फार्मूला पुट करेंगे, जो भी फार्मूला आपने करेंगे, चाहे आपको सम करना हो, चाहे आपको डिवीजन करना हो, चाहे आपको मैथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, तो सबसे पहले हमें एक साइन यूज होती है एंड दैट साइन इज कॉल्ड एन इक्वल टू साइन। ओके, इसके बाद क्रिएटिंग फार्मूलाज। अगर आपने फार्मूला क्रिएट करना है तो इसमें आपके पास स्टेप क्या होंगे? सिलेक्ट अ सेल, सबसे पहले आपको सेल को क्लिक करना होगा, टाइप द इक्वल टू साइन क्लिक करना होगा, सिलेक्ट अ सेल और टाइप वैल्यू, देन इंटर द मैथमेटिक ऑपरेटर, देन सिलेक्ट अनदर सेल और टाइप वैल्यू, देन प्रेस इंटर। फॉर एग्जांपल वेरिएबल फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 1 + 1। अगर आपने ये बेसिक फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो फर्स्ट आपको सेल के अंदर आपको एक नंबर पुट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 पुट किया, अगेन इक्वल साइन मैंने 3 पुट किया, अगेन 5 किया। अगर मैं इनको सम करना चाहूँ सो द फर्स्ट ऑप्शन इज आई नीड टू अप्लाई इक्वल टू साइन। इक्वल टू मैंने लगाया, राइट। देन मुझे क्या करना होगा? सिलेक्ट द सेल्स, सिलेक्ट द सेल्स। तो फिर मुझे इस 2 पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस 2 पे क्लिक करूँगा तो C2 इस सेल के अंदर अवेलेबल है। सो C इज द कॉलम, 2 इज द रो। अब मैं यहाँ से इसके कोने से इसको ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ, राइट। एंड देन आई नीड टू प्रेस द इंटर। ओके, सो इट विल शो। ओके, using formulas with cells, you can type values to cells and use them in your formulas. Let's type some dummy values to get started. Double click the cells to type values into them. Go ahead and type. Okay, then Excel range. Range is an important part of Excel because it allows you to work with selection of cells. There are 4 different operations for selection: selecting a cell, selecting multiple cells, selecting a column, selecting a row. अगर आपने एक रो को सिलेक्ट करना है, एक कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपको कोई क्या चाहिए, आप इस पर क्लिक करेंगे, देन आप अपने इसको ड्रैग करना है। सो सिमिलरली आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपने एक रो को सिलेक्ट करना है तो आप रो कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ऊपर देखिए A B C अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के
Then next is the Excel fill, right? Excel fill. Filling makers your life easier and is used to fill ranges with value, right? So copying, sequencing, days and functions. So these are the functions you can apply. Now Excel formatting, right? Excel formatting. Excel has many ways to format and style a spreadsheet. Why formats and styles your spreadsheet? Make it easier to read and understand. आप क्यों फॉर्मेट करना चाहेंगे एक्सेल शीट? इजियर बनाने के लिए, मोस्ट अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, मेक इट मोर डेलिकेट बनाने के लिए आप उसको सिलेक्ट करना चाहेंगे, फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे। और जब आप इसको फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप कलर्स अप्लाई करेंगे, यू नीड टू अप्लाई फॉन्ट्स, यू नीड टू अप्लाई बॉर्डर्स, देन नंबर फॉर्मेट्स, देन ग्रिड्स। सो ये सारी चीज़ें आपके पास रिबन के अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन करूँ, यहाँ पे एक वर्ड आपने लिखा है वेलकम। अगर मैं इसी को ही एडिट करना चाहूँ तो देन फर्स्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन आई नीड टू क्लिक ऑन द टेप, होम टेप। और होम टेप के अंदर मेरे पास है बोल्ड, दिस वन इज इटैलिक, दिस वन इज अंडरलाइंड। मैंने इनको अप्लाई किया, राइट? ओके, नाउ मैं साइज इंक्रीज करना चाहूँ, सो दिस इज द एरिया। यहाँ से आप जाएंगे फॉन्ट साइज के, आप इससे साइज बना सकते हैं, राइट? अगेन मुझे इसका कॉलम थोड़ा सा करना होगा, तो मैं इसी तरीके से कॉलम इंक्रीज करूँगा। अगर मैं इसको कलरफुल बनाना चाहूँगा तो मेरे पास दिस इज द कलर, फॉन्ट कलर पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैंने इसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर इज देयर, मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप इस हेलो वर्ल्ड को फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे तो सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर फॉन्ट के अंदर आप जाएंगे, ये फॉन्ट के अंदर आप जाके आप डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं फॉन्ट कलर। जैसे कि मैं इसको डिफरेंट स्टाइल दे रहा हूँ, क्योंकि आल्सो अप्लाई दी स्टाइल्स, राइट? जो आपको अच्छा लगता है वही आप चूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट इज द, यहाँ पर अगर आप इसको अगर आप इसकी अलाइनमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सेंटर पे रखना है, जस्टिफाई करना है, या राइट पे लेके जाना है, या लेफ्ट पे लेके जाना है, इट्स अप टू यू। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके इर्द गिर्द अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो बॉर्डर इज हियर, आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स करें, नो बॉर्डर्स करें। अगर आप ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो इसके गिर्द, इसके चारों तरफ एक लाइन लग जाएगी, एक बॉर्डर लग जाएगा सिंपली, ठीक हो गया? तो दीज ऑल आर अवेलेबल, आप इनको इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें आप इस चीज़ को। देन नेक्स्ट इज एक्सेल फॉर्मेट पेंटर और एक्सेल फॉर्मेट कलर, ठीक है? एक्सेल फॉर्मेट कलर मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सेल से दिखा दी कि वेयर आर द फॉर्मेट कलर्स। तो ये यहाँ पर मौजूद है, दीज आर द फॉर्मेट कलर्स, ये और ये, सो कि दीज आर द फॉर्मेट कलर्स, राइट? ओके, नेक्स्ट एक्सेल फॉर्मेट फ़ॉन्ट्स। एक्सेल फॉर्मेट फ़ॉन्ट्स भी मैंने आपको दिखा दिया है, अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो वेयर आर द एक्सेल फॉर्मेट फ़ॉन्ट्स। ये जो चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास 12 सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने से फ़ॉन्ट साइज़ आपके पास शो हो जाएगा। द मिनिमम फ़ॉन्ट साइज इज़ 8 एंड द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज इज़ 72, राइट? सो यू कैन चेक हियर, आप यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो दिस इज़ द फ़ॉन्ट एरिया। Okay, next is the Excel format borders, Excel format numbers, Excel format numbers, right? The default number format is general. Why change number format? Make data explainable, prepare data for functions so that Excel understand what kind of data you are working. तो आप एक्सेल में अगर नंबर फॉर्मेट करना चाह रहे हो तो आप जनरल कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो, आप करेंसी नोट कर सकते हो, आप टाइम लगा सकते हो। सो दिस ऑल आर अवेलेबल हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? इसके लिए आपको ये जनरल पे जाना होगा और यहाँ पे जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है। सो दिस ऑल आर अवेलेबल। इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए तो मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करके आप मोर फीचर्स को गेट कर सकते हैं, राइट? ओके, अगर आपको इस तरह का एक टेबल बनाना हो तो आइटम प्राइस शॉप कार्ड एट्सेट्रा, तो आपको डेटा इस अंदाज से आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पुट करना होगा। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सेल डेटा एनालिसिस, एक्सेल सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? आपके एक्सेल के ऊपर बहुत सारा डेटा है, ठीक है ना? अगर आप उसको A to Z करना चाह रहे हो या Z to A करना चाह रहे हो, ठीक है? या उसको असेंडिंग ऑर्डर बनाना चाह रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना चाह रहे हो, तो उस वक्त अभी एक्सेल आपकी हेल्प कर सकता है। एक्सेल सॉर्टिंग कहते हैं इस चीज़ को। तो वो कैसे, वो आप जाएंगे एक्सेल सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्सेल शीट है, यहाँ पे अगर आपके पास A है, राइट? यहाँ पे आपके पास B है, यहाँ पे आपके पास X है और यहाँ पे आपके पास Z। इस डेटा को अगर आपने फ़िल्टर करना हो तो फर्स्ट आप इसको क्लिक करना होगा और देन यहाँ पे साइड पे देखिए आप, दिस इज़ द सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके अगर आप Z to A करेंगे तो इट विल Z to A, राइट?
अगर आप इसको अगेन A to Z करना चाह रहे हो तो आप A to Z के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सॉर्ट करेंगे तो इट विल सॉर्ट इट। नेक्स्ट आपके पास है एक्सेल फिल्टर, मैंने आपको बता दिया। देन एक्सेल टेबल्स, राइट, एक्सेल टेबल्स। टेबल एक्सेल में बहुत अहम रोल अदा करता है। रेंजेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेबल्स। टेबल्स मेक इट ईजियर टू स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा। सो टेबल्स अलो फॉर ऑप्शन सच एज सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर आप एक टेबल बना के इसमें आप सॉर्ट एंड फिल्टर लगा सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो अच्छे से, और इसको आप ऑटो फिल कर सकते हो, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे एक टेबल शो कराया गया है, नेम, टाइप 1, टाइप 2, HP, टेक, डिफेंस एटसेट्रा। तो इस तरह का आपको एक टेबल बनाना हो, आपको अगर इस तरह के टेबल चाहिए तो फर्स्ट आप टेबल तरतीब दे दें, देन आप इसके ऊपर बाउंड्री अप्लाई करें, ठीक है ना, आप इसके ऊपर बॉर्डर लगाइए, आप इसके ऊपर फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करें, फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करें, और आप इसके ऊपर टेबल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको एक्सेल पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द एक्सेल। अगर आपके पास ये टेबल है तो फर्स्ट आपने इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको टेबल फॉर्मेट पे जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट इस टेबल है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके ऊपर शो हो रहा है रिबन के अंदर फॉर्मेट इस टेबल। फॉर्मेट इस टेबल के अंदर जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। ओके करेंगे तो ये टेबल का फॉर्मेट बन गया, ठीक हो गया। अब अगर होम में जाएंगे, होम में जाके वही चीज़ें फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, बॉर्डर्स आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल बॉर्डर्स करें, नो बॉर्डर्स करें, सब टू यू, ये सारी चीज़ें। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। देन सेल स्टाइल अगर आप अप्लाई करना है तो आप कह रहे हैं कि मेरी सेल की स्टाइल इस अंदाज में होनी चाहिए, आप ये अप्लाई कर सकते हो। सो यू कैन सी बहुत अच्छे अच्छे सेल स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप अपने टेबल को मर्जी जितना चाहें आप खूबसूरत बना सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट टेबल डिज़ाइन। अगर आपने एक टेबल को डिज़ाइन करना है, ठीक है ना, अपने टेबल को अच्छा सा डिज़ाइन करना है, सो द डिज़ाइन टेब इज़ अवेलेबल, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर आपके पास ये टेबल है, इसका अगर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हो, सो द डिज़ाइन टेब इज़ अवेलेबल हियर, राइट। डिज़ाइन टेब, डिज़ाइन डेटा, रिव्यू फार्मूलाज, पेज लेआउट्स, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, आप इन सब कुछ चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट, अगेन आई एम सेलेक्टिंग द टेबल, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे टेब से ये आपके टेबल्स को, आपके टेबल्स के लिए इंसर्ट पे आप क्लिक करके आप लेआउट चेंज कर सकते हो, आप पेज लेआउट में जाके कर सकते हो, फार्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर डेटा है, रिव्यूज़ है, टेबल्स के अंदर जाएंगे तो मज़ीद फॉर्मेटिंग्स आपको मिल रहे हैं। कि देन नेक्स्ट है टेबल रीसाइजिंग। अगर आपने टेबल को छोटा करना हो, बड़ा करना हो, द साइज ऑफ अ टेबल कैन बी चेंज्ड। टेबल की जो साइज़ है वो इट इज़ चेंजेबल। रीसाइजिंग इज़ टू इंक्रीज और डिक्रीज। रिसाइज मीन्स आपने टेबल को इंक्रीज़ करना हो, डिक्रीज़ करना हो, सो इट्स अप टू यू। तो इसको क्या है, रिसाइज टेबल कमांड्स, ड्रैग और रिसाइज, एडिंग हेडर्स। अगर हेडर्स लगाना हो, फुटर्स लगाना हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। देयर आर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इनको A to Z ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। सो यहाँ तक मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, और आपसे गुजारिश है कि आप W3 स्कूल्स जो है इसको आप ज़रूर विज़िट करें, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने PC से इसको विज़िट करें और आप इसको सीखें, राइट। जो चीज़ें यहाँ पे है थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसको पढ़ें, देन आप उसको अंडरस्टैंड करें और फिर इसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करें। एक्सेल को ओपन करके उसके अंदर प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप एक्सेल का एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।